बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोर प्रोसीजर। सो बिफोर गोइंग टू द अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर, let's understand that what happen when we execute a simple SQL statement in SQL Server. When any SQL statement are fired on SQL Server, then three steps are happening in order. जब कभी हम SQL सर्वर के ऊपर कोई क्वेरी रन करते हैं या कोई SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये तीन चीज़ें परफॉर्म होती हैं। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, as we can see in this diagram, first time SQL syntax are checked. Step number one, when whatever we write, let's suppose we write select all from a table name employee. So it checks your syntax, that is whether your syntax is executable or perfect or not. And once it check this, it goes to the step number two and check a plan. Okay, so the plan is what we discuss it here. The first step, ensure the syntax are correct and there is no error and the query is ready for executing on SQL Server. The next step is plan selected. Once the syntax are checked, the second step to select a plan. The query must be using some tables. It will go check what type of indexes are exist on these table. It will also check can use these index or a table. Scan is fine. So the second step to select a proper execution plan to execute a query. So in this step, what happens, the plan is get selected, whether that, as we discussed in the previous videos about the indexes, that what is cluster and what is non-cluster index. So if you haven't seen, then go and please watch these video so you would be able to understand about the indexes. So in the second step, what happens, the plan gets selected, and in the third step the query is executed. After all these 1, 2, 3 steps, a query is executed. Whenever we write on the SQL Server, let's suppose we write select all from employee, so it checks. Okay, as you can see, my syntax is not correct, so it will check. First step, it is correct, then select the plan 2 execution and 3. Now you can see. So after these steps, the data is retrieved. But what happens when we use a stored procedure in place of using ad hoc queries, or you can say inline query? So what happens on the first, when we use a stored procedure, the first step is executed only once, the second step is executed only once, and then what happens, it cache the plan selected. And whenever we run the stored procedure, it only get through the step number 3. तो जब कभी हम जो है स्टोर प्रोसीजर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर जो है ना, क्वेरी प्री कंपाइल फॉर्म के अंदर होती है। तो स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर जो हमारी क्वेरीज हैं वो प्री कंपाइल फॉर्म के अंदर होती है, यानी वो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 तक रेडी होती हैं। जब जब हम स्टोर प्रोसीजर को वो करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो सिर्फ क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ये 2 स्टेप्स जो हैं स्किप हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा, हमारी जो है एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट हो जाएगी। सो जो इनलाइन क्वेरी वर्सेस अगर स्टोर प्रोसीजर की बात करें, तो स्टोर प्रोसीजर है क्वाइट फास्ट, तो उसका जनरल रीज़न हमारे सामने कि हम ये 2 स्टेप्स जो हैं पीछे एग्जीक्यूशन के स्किप जो है क्वेरी एग्जीक्यूशन के, उसको हम प्री कंपाइल करके रख चुके होते हैं in store procedure. So what is a stored procedure? Stored procedure is a database object which contains pre-compiled queries, a group of T-SQL statements. In other words, we can say the stored procedure are a block of code designed to perform a task whenever we called. तो आप कह सकते हैं कि स्टोर प्रोसीजर जो एक ब्लॉक ऑफ कोड है जहां हम अपना कोई भी सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट डिलीट हो गया, आप ये अपने जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं जैसे। अब लेट्स कम बैक टू दिस। अब विजुअल स्टूडियो पे मैं वापस आया हूँ। अब यू कैन सी कि मैंने अपनी सीक्वेंस क्वेरी में चला रहा हूँ। जब मैं इसको रन करता हूँ तो वो क्या होता है, वो इन 3 से होते हुए गुजरती है। पहले सिंटेक्स चेक होता होगा, प्लान सेलेक्टेड होता है, फिर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। अब स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने का, क्रिएट proc sp underscore get all employees, ठीक है। और we are not providing it any parameter, input parameter as begin end,
select all from employee. So I have done what, मैंने ये जो query है ना, I have put it here. Okay, अपनी ये स्टोर प्रोसीजर को कर लिया एग्जीक्यूट. अब ये मेरे पास जो क्वेरी है वो सेव हो गई इन द प्री कंपाइल्ड फॉर्म. अब जब मैं स्टोर प्रोसीजर को कॉल करूँगा एग्जीक्यूट proc sp अंडरस्कोर, ये मेरे क्वेरी का नाम, स्टोर प्रोसीजर का नाम है, और सॉरी proc नहीं आएगा, एग्जीक्यूट बस स्टोर प्रोसीजर का नाम आएगा. तो आप ये देखें, तो ये क्वेरी इधर रन हो गई, ये देखें. सो इसका रिट्रीवल जो है ना कंपैरेटिव टू दिस फास्ट होगा. रीज़न इज व्हाट, जैसा कि हमने देखा कि जब हम स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं तो ये 2 स्टेप्स स्किप हो जाते हैं. यानी स्किप हो जाने का मतलब है कि वो पहली दफ़ा में परफॉर्म हो जाते हैं, कैश्ड हो जाते हैं, और फिर जो है ना कैश वाले से जब भी हम स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं तो जस्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही होती है उसके अंदर की. सो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ द स्टोर प्रोसीजर. ठीक है. अच्छा, व्हाट आर द एडवांटेजेस यूजिंग अ स्टोर प्रोसीजर. तो एडवांटेजेस के क्या हैं. एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि एग्जीक्यूशन प्लान रिटेंशन विच इम्प्रूव द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस. दूसरा क्या है कि रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक. अभी क्या हो रहा है कि अगर आपको यहाँ पर कॉल करने के लिए सिर्फ अपने स्टोर प्रोसीजर का नेम प्रोवाइड करना पड़ा और ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, तो इससे क्या होगा, आप नेटवर्क ट्रैफिक आपका रिड्यूस हो रहा है. बट इन केस अगर आपको ये स्टोर प्रोसीजर ना यूज़ करें, सो यू विल हैव टू राइट एड हॉक क्वेरीज विच नीड टू एग्जीक्यूट दैम which may contain number of lines, so the store procedure reduce your network traffic as well. कोड रीयूजिबिलिटी और बेटर मेंटेनेबिलिटी हो जाती है कि जब आप स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं तो फिर यू कैन मेक अ रीयूज ऑफ इट, या आप इसको कहीं और पे भी यूज़ कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू राइट द क्वेरी अगेन. लेट्स सपोज यू आर getting the same data set on in another place or in another application or page. तो ये क्या होगा, ये रीयूजेबल भी है और मेंटेनेबल इज इन द फॉर्म कि हम अगर बिजनेस लॉजिक या कोई क्वेरी के अंदर चेंजेस करना चाह रहे हैं, सो वी विल हैव टू चेंज ओनली एट वन प्लेस. हम प्रोसीजर के अंदर आके ऑल्टर करेंगे. वी डोंट हैव टू राइट सेपरेटली इंडिविजुअली टू दैट इनलाइन क्वेरी. तो ये इसकी मेंटेनेबिलिटी भी काफ़ी बेटर. और बेटर सिक्योरिटी इज़ व्हाट, कि इसके ऊपर जो है एसक्यूएल इंजेक्शन इट कैन प्रोवाइड यू के प्रोटेक्ट यू थ्रू और अवॉइड SQL इंजेक्शन अटैक, जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया कि SQL इंजेक्शन अटैक क्या होता है. तो इससे भी आपको ये क्या करेगा, बेटर सिक्योरिटी परफॉर्म करता है. ठीक है. सो वी आर तो हम इसके अंदर सिर्फ नॉट ओनली दिस, तो हम इसके अंदर जो है ना कुछ और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट. सो मैंने आज से कोई 4-5 साल पहले इस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं स्टोर प्रोसीजर, बट मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया होगा दैट टाइम, आई नो. सो आप उस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, उसमें सिर्फ सिंटैक्स होगा, बट द एक्सप्लेनेशन इज इन दिस वीडियो. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी आर गेटिंग, बट इफ़ यू वांट टू सी तो मैं उसका जो है ना लिंक डाल देता हूँ, तो यू कैन गो. Okay, the next thing we have, what is return value in SQL Server Procedure. Whenever we execute a stored procedure in SQL Server, it always returns an integer status variable indicating the status. Usually 0 indicates success, a non-zero indicates the failure. तो जो हम जब भी SQL सर्वर पे स्टोर प्रोसीजर को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इट ऑलवेज रिटर्न्स एन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस. और अगर 0 नहीं रिटर्न करता तो उसका मतलब है कि आपकी क्वेरी में कुछ फेलियर आया है. ठीक है. अच्छा, 2 तरीके होते हैं इसके अंदर, एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है और एक वी हैव आउटपुट पैरामीटर्स. तो इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है. तो रिटर्न स्टेटमेंट ओनली इंटीजर डेटा कैन बी रिटर्न, और इसमें आपको किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न करा सकते हैं. ओनली वन वैल्यू, इसमें एक वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं. यूज टू इंडिकेट सक्सेस और फेलियर, और used to return value like name, age, salary, count, etc. So let's begin this. अभी हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर बना लेता हूँ मैं आपके सामने. create proc get employee name by id, मैंने एक बना लिया. ठीक है. अब यहाँ पर मैं इसको करता हूँ और एक पैरामीटर यहाँ पे बस लिख देते हैं रिटर्न. अच्छा, इसमें पैरामीटर्स होते हैं, 2 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं.
एक होता है इनपुट पैरामीटर और एक होता है आउटपुट पैरामीटर। तो अभी हम इनपुट पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। इसमें @id इंटीजर जो आप प्रोवाइड करेंगे, वेयर id इज इक्वल्स टू @id। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ऑल की जगह आप कर दें नेम, तो गेट एम्प्लॉय नेम बाय आईडी इस तरह से ही हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स मेक दिस एग्जीक्यूट। ठीक है, अब ये यहाँ पे आए, नीचे इसको कॉल करके देखें, एग्जीक्यूट दिस स्पेस दिया। अब ये देखो आईडी मांग रहा है, तो उसको आईडी नंबर 1 प्रोवाइड की। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कन्वर्टिंग। अब ये देखो रिटर्न के ऊपर ये क्या कह रहा है, कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द varchar वैल्यू अनुराग टू टाइप इन 2 पास करके देखो, सेम एरर देगा उस नेम के लिए भी कि इसको इंट क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो रिटर्न टाइप है दैट कैन ओनली रिटर्न द इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू ही सब ये रिटर्न कर सकता है, कुछ और रिटर्न नहीं कर सकता। सो लेट्स कॉपी द प्रोसीजर। तो ये रिटर्न वैल्यू के साथ प्रॉब्लम है। इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक और बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसका नेम थोड़ा चेंज करना होगा, गेट आईडी रिटर्न्स का नाम से कर लें आउट, इसके आखिर में आउट लिख देता हूँ मैं, आउट पैरामीटर से हो रहा होगा। ठीक है, @name एन varchar लेंथ इज 50 के, और इसको आउट लिख दिया आखिरी में, या आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न की जगह आपने लिख दिया set @name इज इक्वल्स टू दिस, कि जो वैल्यू होगी वो उसमें सेट हो जाएगी। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब ये जो है ना आउटपुट पैरामीटर ले रहा है, आउटपुट पैरामीटर मतलब है किसी वेरिएबल में वैल्यू होल्ड करेगा। तो पहले आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेयर @name, या कोई वेरिएबल कोई भी नाम रख सकते हो, तो मैंने दोबारा से नेम ही रख दिया, एन varchar लेंथ इज 50। ठीक है, और उसके बाद अब इसको कॉल करेंगे। प्रोसीजर का नाम क्या है, प्रोसीजर नेम इज दिस, आई एम कॉपिंग दिस और यहाँ पेस्ट किया, एग्जीक्यूट पेस्ट स्पेस दिया। पहले वो आईडी मांग रहा है, आईडी नंबर 1 दे देते हैं, और यहाँ वो मांग रहा है आउटपुट पैरामीटर, वी आर प्रोवाइडिंग इट एज नेम। ठीक है, और प्रिंट करा दो @name को। तो जो ऐसे स्टेटमेंट ये वाला प्रोवाइड होगा तो इसके अंदर सेट करेगा, और इसको यहाँ पे, और फिर हम इसको प्रिंट कराते हैं। लेट्स रन दिस, क्वेरी रन हो गई, प्रिंट नेम। इसमें वैल्यू सेट की है, बट इट्स नॉट डिस्प्लेइंग। तो वेट, इसको पहले मेरे क्वेरी में उसमें मसला है, प्रोसीजर में ड्रॉप प्रॉक, इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, दोबारा क्रिएट करेंगे, ये कर दिया एग्जीक्यूट, और यहाँ से सेट हटाया, सेलेक्ट नेम इज इक्वल्स टू नेम। लेट्स मेक दिस, एग्जीक्यूट दिस। अब चला के देखो भाई, ओके आउटपुट ये नहीं लिखा मैंने, ओके एज यू कैन सी अभी प्रिंट कर रहा है, तो मैंने ये आउटपुट लिखना भूल गया था यहाँ पे, इसीलिए नहीं चल रहा था। ये देखो अभी इनके नेम्स प्रिंट कर रहा है, 3 पे कौन है, 4 पे कौन है, 5। सही है, तो ये डिफरेंस है रिटर्न और इसमें। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।